Hello students and welcome to the biology solutions of the first P set of this particular session. Here we will be discussing the biology section of class 10. So question number 31, the filtration units of kidney are called. So the basic unit of filtration which is present in the kidneys in the excretory system of humans, that is called to be nephrons. तो इसका मतलब question number 31, the correct answer here should be option B, nephrons. Now question number 32, the substance which builds up in muscles during vigorous exercise and may cause cramps is called. So when we are vigorously performing exercises, what will happen is your muscles, they are going to switch momentarily for anaerobic respiration, and a product of this anaerobic respiration in the muscles, that tends to be lactic acid. And यही lactic acid जब ज़्यादा time के लिए muscles में accumulate हो जाता है, this accumulation eventually results in some painful cramps. तो इसका मतलब question number 32, the correct answer should be option C, lactic acid. Now question number 33, ये plant hormone से related है. The main effect of cytokinin in plants is to. So cytokinins, they are a proper growth inducing hormone. और इसका जो नाम हो रहा है ना cytokinin, so cytokinin that is derived from the word cytokinesis which literally means cell division. तो इस हार्मोन का नाम ही सेल डिवीजन से रिलेट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका मेजर फंक्शन क्या होने वाला है? टू प्रमोट और टू स्टिमुलेट सेल डिवीजन इन द प्लांट पार्ट्स. सो क्वेश्चन नंबर 33, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी. नाउ क्वेश्चन 34, असर्शन रीजन हो रहा है. असर्शन, ब्रेन इज अ डेलिकेट ऑर्गन विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी. तो पूरे ह्यूमन नर्वस का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, उसका जो मेजर कमांड सेंटर है वो कौन हो रहा है? दैट इज द ब्रेन. तो इसका मतलब ब्रेन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्लस इट्स अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, we need to make sure that it is well protected. तो इसका मतलब assertion वाला जो statement है that is true. Reason, the bony box protects brain from any shock. तो ये जो bony box की बात हो रही है, the skull or the cranium, yes, the brain is present inside the skull and the skull or the cranium, it protects the brain. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ शॉक. तो ये जो शॉक एब्जॉर्बिंग वाला काम हो रहा है ये क्रैनियम नहीं कर रहा है. तो क्रैनियम, दिस इज दिस आउटर मोस्ट बोनी स्ट्रक्चर दैट वी हैव, लेकिन उसके अंडर यू हैव द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फ्लूइड्स एंड टिश्यूज जो क्या कर रहा है, ये शॉक एब्जॉर्प्शन वाला काम कर रहा है. तो मतलब क्रैनियम डायरेक्टली ये काम नहीं कर रहा है. So what is happening in this question is assertion, this statement is true, but reason, directly correct statement यहाँ पे नहीं हो रहा है. So इसका मतलब assertion is true and reason is false. Hence question number 34, the correct answer should be option C. Now question number 35, human reproduction related है. When the fetus is growing inside the uterus, it needs nutrients. Which part provides these nutrients? So मदर का बॉडी और फीटस, जो ग्रोइंग फीटस है, उसके बीच में जो एक कनेक्शन बनेगा जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स मदर के ब्लड से फीटस तक लेके जाया जाता है, दैट पर्टिकुलर कनेक्शन वी हैव, दैट इज कॉल्ड टू बी द प्लासेंटा. सो प्लासेंटा इज द टिश्यू जो ये न्यूट्रिएंट ऑक्यूपाई करने में हेल्प करा रहा है फॉर द फीटस. दैट इज वाई क्वेश्चन नंबर 35, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन B. Now question 36, human offspring's sex is determined by which particular process? तो humans में दो टाइप के sex chromosomes हो रहे हैं, X and Y. So what we know is this कि female bodies they have XX, male bodies on the other hand they have XY. तो इसका मतलब progeny में जो भी sex chromosome जाएगा, mother से तो एक ही possibility हो रहा है which is the X chromosome. But फादर से दो पॉसिबिलिटी हो रहा है, या तो फादर से एक्स क्रोमोसोम जाएगा या फिर वाई क्रोमोसोम जाएगा. तो इसका मतलब अगर मेल पेरेंट ने एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट किया है, द ऑफस्प्रिंग इज गोइंग टू बी फीमेल. अगर मेल पेरेंट ने वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट किया है, द ऑफस्प्रिंग इज गोइंग टू बी मेल. सो इसका मतलब ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है? दिस इज थ्रू द फादर्स सेक्स क्रोमोसोम. दैट इज वाई क्वेश्चन नंबर 36, द करेक्ट आंसर शुड बी option A. Now question number 37, which of the following scientists gave the principles of inheritance? So principles of inheritance, the three major principles that we have, law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. So using his pea plant experiments, ये तीनों basic principles किसने propose किए थे? They were proposed by Gregor Mendel. So question number 37, the correct answer should be option C, Mendel. Now question number 38,
द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। तो ये जो एक रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप, जिसके थ्रू फूड प्रॉपरली मूव करता है फ्रॉम द बकल कैविटी टू द स्टमक, तो इस रिदमिक मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड टू बी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और सिंपली पेरिस्टालसिस। So question number 38, the correct answer should be option C. Now question number 39, when a few drops of iodine solution are added to rice water, it turns blue black in color. तो ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? तो राइस वाटर में जैसे आयोडीन ऐड किया जा रहा है, इट टर्न्स ब्लू ब्लैक। तो आयोडीन का जो इंटरेक्शन हो रहा है ऐसे कलर इंडिकेशन के लिए, ये किसके साथ होता है? स्टार्च के साथ होता है। जनरली हम लोग को जब स्टार्च डिटेक्ट करना होता है किसी प्लांट पार्ट में, लीफ में, कहीं पे भी, सो वन कंपाउंड दैट वी यूज ओवर देयर इज आयोडीन। तो इसका मतलब दिस ब्लू ब्लैक कलर, दिस इज गिविंग अस एन इंडिकेशन दैट राइस वाटर इट इज रिच इन स्टार्च। Therefore, the answer should be option B. Now, question number 40. Normal blood pressure in an individual is. तो ह्यूमंस के केस में जब हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो आंसर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। यस, अब इसमें से जो 120 जो अपर लिमिट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज फॉर द सिस्टोलिक प्रेशर, वाइल 80 जो लोअर लिमिट हम लोग लिखते हैं, दिस इज गोइंग टू बी फॉर डायस्टोलिक प्रेशर। तो 120/80 ये नंबर्स तुमको याद रहेंगे, बट साथ ही याद रखना 120 दैट इज सिस्टोलिक, 80 दैट इज डायस्टोलिक, इट कैन नॉट बी फ्लिप्ड। सो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 40, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए। Now question number 41, double circulation is present in. So what is happening in double circulation? There is a clear distinction for the vessels or the sites for oxygenated and deoxygenated blood. And ये जो दो टाइप का ब्लड हो रहा है ये हार्ट से एक एक करके पास करेगा। तो इसका मतलब टोटल बॉडी का जो ब्लड हो रहा है वो हार्ट के थ्रू 2 बार पास हो रहा है, हेंस डबल सर्कुलेशन। तो ये जो डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस हो रहा है उसके लिए हार्ट हैज़ टू बी डिजाइंड अकॉर्डिंगली। देयर शुड बी 2 साइड्स, लेफ्ट एंड राइट। अलॉन्ग विद दैट दोनों साइड्स में हमें 2-2 चेम्बर्स चाहिए, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो इसका मतलब टोटल अभी हार्ट में चेम्बर्स कितने हो गए? 4। एक 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रॉपरली बनना चाहिए। तो ऐसा 4 चेम्बर्ड हार्ट एंड इवेंचुअली लीडिंग टू डबल सर्कुलेशन ये ऑब्जर्व किया जाता है इन केस ऑफ एब्स विच आर बर्ड्स एंड इन मैमालिया विच आर सिंपल मैमल्स। तो इसका मतलब मैमल्स एंड बर्ड्स इन दोनों में ये ऑब्जर्व किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, a cross between a tall pea plant, homozygous tall pea plant है, and a short pea plant, again homozygous short plant है। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? जितना भी इनके ऑफस्प्रिंग्स थे, all of them they tend to be tall. So इसका मतलब टॉल एंड ड्वार्फ या टॉल एंड शॉर्ट के बीच में जब यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो इसकी वजह से जो डॉटर जनरेशन है, ऑल ऑफ देम आर टॉल, नन ऑफ देम आर शॉर्ट इन नेचर। तो इसका मतलब ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया? कैपिटल टी अगर हम लोग देख रहे हैं एंड स्मॉल टी, इस क्रॉस का जो रिजल्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी। सो इवन आफ्टर हैविंग स्मॉल टी अलील, एक्सप्रेस तो वो नहीं कर पा रहा है, शॉर्टनेस एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। एक्सप्रेस कौन हुआ? सिर्फ टॉलनेस एक्सप्रेस हुआ। तो इसका क्या मतलब हो रहा है? दैट्स कैपिटल टी, टॉलनेस वाला जो ट्रेट हो रहा है दैट इज डोमिनेंट इन नेचर। तो इसका मतलब ऑप्शन डी, tallness is the dominant trait. That should be the correct answer for question number 42. Now question number 43, it's an assertion reason question. Assertion, variation is high in sexually reproducing organisms compared to asexually reproducing organisms. ये statement correct है। दोनों टाइप के reproduction में variation occur होता है, but sexual reproduction में the amount of variation is more. इसके पीछे reasons हैं like that in sexual reproduction meiosis is involved. तो meiosis में crossing over वगैरह होगा, उससे variation आने के chances ज़्यादा हो जाता है। Plus sexual reproduction में अगर हम 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट देखें तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स से आएगा, तो उसके मिक्स एंड मैच से भी क्या होगा? वेरिएशन ज़्यादा आएंगे। बट ये दोनों लिमिटेशंस हो रहे एसेक्सुअल में कि ये अकर नहीं हो रहा है। नाउ द रीजन दे हैव मेंशन्ड इज इनएक्यूरेसीज ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग गिव्स राइज टू वेरिएशन। नाउ ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज फॉर बोथ सेक्शुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल्स अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए पहले क्या होगा? डीएनए कॉपी करेगा। एंड डीएनए कॉपिंग दिस केमिकल मैकेनिज्म ये इतना एक्यूरेट भी नहीं होगा, सो देयर आर गोइंग टू बी स्मॉल इनएक्यूरेसीज देयर, जिसकी वजह से वेरिएशन होगा। लेकिन
इनएक्यूरेसीज ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल से ज़्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं, वो बस ये बता रहा है कि वेरिएशन हो रहा है। तो इसका मतलब assertion and reason both statements are true, but reason is not the correct explanation of this assertion. Therefore, question number 43, the correct answer should be option B. Now, question number 44, when air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky. तो lime water के साथ जैसे हम लोग exhale कर रहे हैं, the thing we are exhaling is carbon dioxide जो उसके साथ interact कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इंटरेक्शन की वजह से उसमें एक कलर चेंज आ जाता है, द लाइम वाटर इज इवेंचुअली टर्निंग मिल्की। तो ये इंडिकेशन हो रहा है द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट यू आर एक्सेलिंग। सो क्वेश्चन नंबर 44, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, रिफ्लेक्स एक्शंस आर मीडिएटेड थ्रू। तो रिफ्लेक्स एक्शंस बिकॉज दीज आर वेरी क्विक रिएक्शंस ऑफ द बॉडी, तो इसका जो मीडिएशन हो रहा है बिफोर वी ब्रिंग इन ब्रेन इनटू इट, इवेंचुअली ब्रेन विल बी इन्वॉल्व, उसमें जाके इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन का जो मीडिएशन हो रहा है वो उसके पहले कौन करता है, दैट इज डन बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 45, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी, स्पाइनल कॉर्ड। सो आई होप एनी डाउट्स दैट यू गाइज हैड वो क्लियर हो चुका है। I hope you had a good exam and I look forward to seeing you in the classes of PNC Academy. Thank you.